اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے ویورز السلام علیکم. الیکشن پروسیس کا یہ 19واں لیکچر ہے. اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے پیکٹس کے بارے میں. یہ جو پیکٹس ہے اس میں کون کون سے بیلٹ پیپرز کو محفوظ کرنا ہے اس کے متعلق ڈیٹیل سے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں. تو سب سے پہلے سٹارٹ لیتے ہیں پیکٹ 1. پیکٹ 1 یہ وہ پیکٹ ہے, اگر کیمرے کی آنکھ دکھا سکے, پیکٹ نمبر 1. اس پیکٹ میں ویلڈ بیلٹ پیپرز آپ نے ڈالنے ہیں. یہ فار ایگزامپل آپ کے پولنگ اسٹیشن پر 4 کینڈیڈیٹس ہو تو 4 لفافے آپ نے اس طرح تیار کرنے ہیں. اور اس پیکٹس کو کس طرح آپ نے اس پیکٹس کی فلنگ آپ نے کرنی ہے. تو سب سے پہلے یہ بتاتا چلو کہ یہ تمام لازمی پیکٹس جو ہیں یہ پولنگ کے دوران پریزائڈنگ افسر اٹھا لے, اس کے اوپر جو مطلوبہ معلومات ہے اس کا فل کرنا, اس کو بھرنا شروع کر لے اور پھر بعد میں تمام پیکٹس پولنگ ایجنٹس الیکشن ایجنٹس اگر موجود ہو تو ان کو دے دے, اس پہ دستخط بھی کر لے پولنگ کے دوران. پھر آخر میں مشکل نہیں ہوگی, آخر میں صرف اس میں بیلٹ پیپرز ڈالنے ہوں گے. تو یہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہوں گے تو یہ پیکٹ نمبر 1 اتنے ہی آپ نے تیار کرنے ہیں. اور پیکٹس کی جو ہے آپ فلنگس کس طرح کے, الیکشن ٹو دا لوکل کونسل, یہ کس لوکل کونسل کا ہے اس کا نام لکھنا ہے. دوسرے نمبر پر وارڈ کا نام اور نمبر لکھنا ہے. اور اس کے بعد پولنگ اسٹیشن کا نمبر اور نام لکھنا ہے اور ڈیٹ لکھنی ہے. اور اس میں ویلڈ بیلٹ پیپر جو ہے کس کینڈیڈیٹس کے فیور میں پڑے ہیں اس کینڈیڈیٹس کا نام لکھنا ہے. اور اس کینڈیڈیٹس کا انتخابی نشان, چاہے اونٹ ہو چاہے گھڑی ہو, اس کو یہاں سمبل لکھنا ہے کہ کیمل ہے. اور کینڈیڈیٹس جو ہے اس کے بعد نمبر آف ویلڈ ووٹس, کتنے ویلڈ ووٹس اس نے حاصل کیے ہیں, یعنی اس لفافے میں اس کینڈیڈیٹس کے کتنے ویلڈ ووٹس آپ ڈال رہے ہو تو وہ فگر بھی لکھنی ہے, اور ورڈز میں بھی فگر میں بھی جو ہے. اور آخر میں پریزائڈنگ افسر یہاں پہ دستخط کرے گا پولنگ ایجنٹ سے بھی. یہ پیکٹ نمبر 1 ہے, اس میں ہر کینڈیڈیٹس کے ویلڈ ووٹس ڈالنے ہوں گے. اب ہم آتے ہیں پیکٹ نمبر 2. پیکٹ نمبر 2 آپ نے ایک دانہ تیار کرنا ہے. اس پیکٹ نمبر 2 میں آپ نے گنتی سے خارج شدہ ووٹ ڈالنے ہیں. اس کی فلنگ بھی اسی طرح آپ نے کرنی ہے. اور آخر میں یہاں پہ آپ نے وہ فگر لکھنی ہے کہ اس میں گنتی سے کتنے خارج شدہ ووٹ ہو, اس کو فگر میں اور ورڈز میں دونوں میں آپ نے لکھنی ہے. یہ پیکٹ نمبر 2 میں گنتی سے خارج یعنی ایکسکلوڈڈ ووٹس فرام دا کاؤنٹ اس کو ڈالنے ہیں. پیکٹ نمبر 3. پیکٹ نمبر 3 اس طرح بڑا پیکٹ ہے. اس پیکٹ میں آپ نے پیکٹ نمبر 2 اور پیکٹ نمبر 1 تمام یعنی 4 کینڈیڈیٹس آپ کے پولنگ اسٹیشن میں تھے تو 4 پیکٹ آپ نے 1 کے بنائے اور ایک پیکٹ 2 کا تھا جس میں ایکسکلوڈڈ بیلٹ پیپرز ایکسکلوڈڈ فرام دا کاؤنٹ تھے. یہ تمام پیکٹ نمبر 1 اور پیکٹ نمبر 2 تمام کو اٹھا کر کے پیکٹ نمبر 3 میں آپ ڈال دیں, اس کو سیل کر دیں. اس کی بھی فلنگ اسی طرح کرنی ہے کہ آپ نے پیکٹ نمبر 1 کتنے ڈالے, پیکٹ نمبر 2 ڈالا ہے, سن وغیرہ آپ نے کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے آپ نے پیکٹ نمبر 4 جو ہے اس میں کیا ڈالنے ہیں. اس پیکٹ نمبر 4 میں ٹینڈر بیلٹ پیپرز آپ نے ڈالے ہیں, یعنی جتنے بھی ٹینڈر ووٹس پڑے ہیں آپ نے اس ٹینڈر بیلٹ پیپر اس میں ڈالنے ہیں اور اس کی فلنگ بھی اسی طرح کرنی ہے. اور اس کے بعد پیکٹ نمبر 4 پہ جاتے ہیں. تو پولنگ کے دوران آپ صبح سے اختتام تک جتنے بھی ٹینڈر ووٹس آتے ہیں پریزائڈنگ افسر جو ہے ان کو پیکٹ نمبر 4 میں محفوظ کرتے ہیں. اور آخر میں گنتی کے وقت آپ نے پیکٹ نمبر 4 سے تمام ٹینڈر ووٹس نکال لیے اور ویلڈ ٹینڈر ووٹس جتنے بھی ویلڈ ہوتے ہیں وہ ٹینڈر ووٹس آپ نے پیکٹ نمبر 5 میں ڈال دیے. ٹھیک ہے. اور پیکٹ نمبر 6 میں
वही टेंडर वोट्स आपने डालने जो गिनती से खारिज हो, यानी पोलिंग के दौरान आपने तमाम टेंडर वैलिड और इनवैलिड दुरुस्त और रिजेक्टेड वोट्स को पैकेज नंबर 4 में डालें। गिनती के दौरान आपने पैकेज नंबर 4 को खाली कर दिया। पैकेज नंबर 5 और 6 में ये टेंडर वोट्स डालिए। पैकेज नंबर 5 में वो टेंडर वोट्स जो दुरुस्त गिनती में शामिल है, और पैकेज नंबर 6 में वो टेंडर वोट्स जो गिनती से खारिज है, आपने ये डाल लिए और पैकेज नंबर 4 फारिग हो गए। उसके बाद पैकेज नंबर 7 में पोलिंग के दौरान जितने भी चैलेंज वोट्स आते हैं आपने पैकेज नंबर 7 में जमा करने हैं, और गिनती के वक्त जब गिनती शुरू हो तो आपने पैकेज नंबर 7 उठाना है, उससे तमाम बैलेट पेपर्स को निकालना है, तो फिर 2 कैटेगरी में तकसीम करने, कितने वैलिड्स है और कितने इनवैलिड्स है, और जितने वैलिड वोट्स निकले पैकेज नंबर 7 से आपने वो वैलिड वोट्स पैकेज नंबर 8 में डालने हैं, और जितने वोट्स चैलेंज वोट्स जो है गिनती से खारिज हो गए आपने पैकेज नंबर 9 में डालने हैं। यानी एक बार फिर बताता चलो, पोलिंग के दौरान जितने भी चैलेंज वोट्स आते हैं आपने उनको पैकेज नंबर 7 में जमा करना है। गिनती के वक्त पैकेज नंबर 7 से तमाम बैलेट पेपर्स को यानी वोट्स को निकाल करके उनको 2 कैटेगरीज में तकसीम करना है, वैलिड और इनवैलिड। वैलिड को जो है पैकेज नंबर 8 में डालने हैं और इनवैलिड को पैकेज नंबर 9 में डालने हैं। अब पैकेज नंबर 7 खाली हो गए, उनके वैलिड वोट्स पैकेज नंबर चैलेंज वैलिड वोट्स पैकेज नंबर 8 में आ गए, और इनवैलिड चैलेंज वोट्स जो है वो पैकेज नंबर 9 में आ गए। अब हम आते हैं पैकेज नंबर 10 पे। पैकेज नंबर 10 ये पैकेज है, इसमें स्ट्रेट बैलेट पेपर्स या स्पॉइल्स बैलेट पेपर आपने पोलिंग के दौरान जमा किए और आखिर में आपने इसकी गिनती कर ली और इसके पेलिंग उसी तरह कर ली कि कितने स्पॉइल्स वोट इसमें मौजूद है, कितने स्ट्रेट बैलेट पेपर्स इसमें मौजूद है, यानी स्ट्रेट और स्पॉइल्स बैलेट पेपर जो है आपने पैकेज नंबर 10 में रखने हैं। उसके बाद पैकेज नंबर 11 इसमें अनइशूड बैलेट पेपर। शुरू में आपके पास मिसाल के तौर पर 500 बैलेट पेपर है, पोलिंग के दौरान 200 बैलेट पेपर जो है यूज हो गए, बाकी 300 बैलेट पेपर रह गए। जितने बैलेट पेपर रह गए आपने इशू नहीं किए, वो तमाम बैलेट पेपर को इस पैकेज नंबर 11 में डालने हैं और इसके फिगर वगैरह सीरियल वगैरह अपने ऊपर लिखना है। पैकेज नंबर 11 में अनयूज्ड बैलेट पेपर। पैकेज नंबर 12 पे आते हैं, काउंटर फाइल्स ऑफ यूज्ड बैलेट पेपर। आपको 500 फॉर एग्जांपल 500 बैलेट पेपर मिले, 500 में से 200 बैलेट पेपर इशू हो गए और 300 रह हो गए, तो पैकेज नंबर 12 में जो है जो 200 बैलेट पेपर आपने इशू किए उसके काउंटर फाइल तो आपके पास रह गए, उन काउंटर फाइल को एहतियात से बाकी बैलेट पेपर से अलग करके उन काउंटर फाइल को पैकेज नंबर 12 में आपने डालने हैं और इसकी पिलिंग वगैरह करनी है। और उसके बाद आते हैं पैकेज नंबर 13 पे। पैकेज नंबर 13 में आपने इंतखाबी फहरिस्त की काफी जो है आपके पास जो मौजूद है उस इंतखाबी फहरिस्त को उठा करके पैकेज नंबर 13 में महफूज करके इसको सेल करना है, यानी इलेक्टोरल रूल इंतखाबी फहरिस्त को आपने पैकेज नंबर 13 में रखना है। उसके बाद पैकेज नंबर 14 में, पैकेज नंबर 14 वो पैकेज है, वो लिफाफा है जिसमें आप टेंडर वोट का जो लिस्ट है, जो फॉर्म था, फॉर्म नंबर 13 था, उसको जो है पैकेज नंबर 14 में डालना है। और पैकेज नंबर 15 नंबर लिफाफा या पैकेज, इसमें आपने चैलेंज वोट का जो लिस्ट था फॉर्म नंबर 14 उसको इस पैकेज में महफूज करना है। और उसके बाद पैकेज नंबर 16 में आपने स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट यानी फॉर्म लोकल गवर्नमेंट में फॉर्म नंबर 16 जो है डालना है, और जनरल इलेक्शन में फॉर्म नंबर 45 आपने जो है
पैकेट नंबर 16 में डालना है। स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट यानी रिजल्ट जो है आपने इसमें डालना है, इसको सेल करना है। और इसमें डाल करके भी वो आप टेम्पर एविडेंट बैग में भी ये लिफाफे डाल सकते हो। ये पैकेट नंबर 16। पैकेट नंबर 17 में आप बैलेट पेपर अकाउंट का जो फॉर्म है, वो बैलेट पेपर अकाउंट का जो फॉर्म है उसको आप इसमें डाल सकते हो पैकेट नंबर 17 में, जिसको लोकल गवर्नमेंट में फॉर्म नंबर 17 कहा जाता है और जनरल इलेक्शन में फॉर्म नंबर 46। यानी बैलेट पेपर अकाउंट यानी बैलेट पेपर की जो गिनती का गोशवारा है आपने उसको उसमें इसको डालना है। और उसके बाद जो है पैकेज नंबर 18 में आपने मुतफरिक कागजात वगैरह डालने हैं। और लास्ट ठीक है आखिर में सबसे एम लिफाफा जिसको पैकेट नंबर 19 कहते हैं, इस पैकेट में आपने ब्रासिल ये सिल सबसे आखिर में, यानी तमाम लिफाफों को आपने सिल किया, पहले को सिल किया, आखिर में ये ब्रासिल जो है आपके पास रह गए, तो इस ब्रासिल को पैकेट नंबर 19 में डाल करके, ये एक लिफाफा है जो सेल नहीं होगा। बाकी तमाम लिफाफों को पैकेट्स को अपने ब्रासिल से जो है सेल करना है। इस 19 नंबर लिफाफा जो है ये खुला रहेगा, ये आपने सेल नहीं करना है क्योंकि इसमें ब्रासिल जाने वाला है। ठीक है, 19 नंबर लिफाफे में आप ब्रासिल डालोगे और इसको जो है आपने बराह रास्त देना है। ये था हमारे पैकेट्स के हवाले से तफसील वीडियो। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, मेरे साथ रहे, शुक्रिया, मेहरबान, थैंक्स।